Ignited Minds Tutorials has recently released an informative series of videos on the topic of rational numbers and mathematics for students studying in Class 8 under the CBSE board. These videos have been carefully curated to cover the entire CERT syllabus, ensuring that students receive a comprehensive understanding of this fundamental concept. Rational numbers are an essential part of the number system and play a significant role in various mathematical operations. This video series aims to simplify the understanding of rational numbers by breaking down complex concepts into easily digestible explanations. Students can now grasp the fundamentals of rational numbers with ease and confidence. The series covers a wide range of topics related to rational numbers, such as introduction to rational numbers, representation on the number line, operations on rational numbers, and their applications in real-life situations. Each video provides step-by-step explanations and examples to help students strengthen their problem-solving skills. With the help of these videos, students can now enhance their knowledge and achieve a deeper understanding of rational numbers. The engaging visual aids and clear explanations provided in this series will help students excel in their examinations and build a strong foundation in mathematics. Ignited Minds Tutorials has always been dedicated to providing top-quality educational resources, and this series on rational numbers is no exception. Students can access these videos at their convenience, making learning a fun and interactive experience. Don't miss out on this excellent opportunity to strengthen your mathematical skills and excel in your examinations. ओके पीपल, लेट्स स्टार्ट विद दिस। कल हमने देखो रैशनल नंबर्स में किया था राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। क्या करोगे, फिर वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। क्या करेंगे हम, बताइए, एलसीएम फाइंड करेंगे। सबको सेम एलसीएम पे लाना है। तो 6, 9, 12 एंड 18, ठीक है। 2 से जाएगा पहले, 2 3 जा 6, 9, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 से भी जाएगा ना भाई। तो ये होगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 9, 2 3 जा 6 और ये हो गया 9, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बोलो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर हो गया ये 3 1 1 1, ठीक है। क्लियर है। तो कितना हो गया बोलो यहाँ पे एलसीएम, व्हाट विल बी द एलसीएम। एलसीएम हियर इज 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है। क्लियर है। अभी सबको भाई साहब 36 पे लाना है। सो लेट्स से यहाँ पे आपका 5/6, इसको मुझे डिनोमिनेटर में 36 लाना है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 से। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 30, ठीक है। ओके, 7/9 है, यहाँ पे क्या है आपका 36। तो 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। नहीं, 9 4 जा 36 ना, तो 7 4 जा 28। यहाँ पे क्या है आपका 11/12, ये कितना है बोलो, 36। 12 into 3, 11 into 3, सो ये हो गया आपका 33। यहाँ पे है 13/18, सो ये हो गया आपका कितना 36। 18 2 जा 36, 13 2 जा 26, ठीक है। अभी इनमें से सबसे स्मॉल कौन सा है, देखो 26/36। असेंडिंग ऑर्डर में करना है, छोटे से बड़ा। तो हम पहले 26/36 इज द स्मॉलेस्ट। इससे बड़ा कौन होगा, 28/36, 28/36। इससे बड़ा कौन होगा, 30/36, ठीक है। एंड बिगर देन दिस विल बी 33/36, 33/36, ठीक है। तो 26/36 मतलब कितना हो गया, 13/18, ठीक है। 28/36 कितना हो गया, 7/9। 30/36 मतलब लेट 30/36 कितना हो जाएगा, 5/6। और 33/36 कितना हो जाएगा, 11/12। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। ओके, तो पहले क्या करेंगे आप, जैसे ही आपको ऐसा मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू इज फाइंड आउट द एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद सबको सेम डिनोमिनेटर पे लाना है। जैसे ही आपने सबको सेम डिनोमिनेटर पे लाया,
छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। अगर यहाँ पे देखो असेंडिंग ऑर्डर दिया है मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर दिया रहेगा मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। और फिर ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ये होगा, ठीक है। यू विल हैव टू बेसिकली कोरिलेट टू दिस, डोंट फिनिश ऑफ विद दिस, अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड रॉन्ग, ठीक है। सो लेट्स, तो पहले हम क्या बोलेंगे, लेट्स मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल पीपल, ठीक है, एलसीएम। लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे आपको 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला आपका प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ठीक है। सो विल टेक आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, वी विल अरेंज देम 6, 9, 12 एंड 18। फर्स्ट वी डिवाइड बाय 3, ठीक है, 2, 1। तो आपका यहाँ पे हो गया एलसीएम ऑफ 6, 9 इज हाउ मच, 3 into 3 into 2 into 2 दैट इज 36, ठीक है। ओके, अभी हम लेंगे भाई साहब 5/6। तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो 5 को भी ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 6 से। सो दिस विल बी 30/36, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सबको कन्वर्ट कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे हमने 6 को 36 लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 से 6 से। यहाँ पे 9 को 36 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर का न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ। 12 को 36 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर का न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ। 18 को 18 into 2 किया, तो ये भी 13 into 2 हो गया, ठीक है। सो नाउ वी हैव 30/36, 28/36, 26/36 इक्वल डिनोमिनेटर्स हो गए। अभी अपने को क्या करना है, वी विल कंपेयर द डिनोमिनेटर्स, ठीक है, वी विल कंपेयर द डिनोमिनेटर्स। सो ऑब्वियसली भाई साहब आप अगर देखोगे, जब भी आपके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज कंपेयर द न्यूमरेटर्स। तो 28 is greater than 26, 30 is greater than 28, and obviously this is greater than this. So this is how it is going to look like, ठीक है। So 13/18, 7/9, 5/6, this would be your answer, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ रहा है। जब भी आपको 3, 4 जो भी फ्रैक्शन दिए हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको करना है, तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, सारे डिनोमिनेटर्स का आप क्या निकालेंगे, द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज टेक आउट द एलसीएम। एलसीएम में लाएंगे और सारे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको एक नए सेट ऑफ फ्रैक्शंस मिलेंगे, इसमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में आप अरेंज करेंगे और ओरिजिनल फ्रैक्शंस को भी ऐसे ही अरेंज करेंगे। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम बहुत बढ़िया, ठीक है। विच ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अभी दोनों भी नेगेटिव नंबर है। अगर सिर्फ एक नेगेटिव और पॉजिटिव होता तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला ग्रेटर हो जाता। और मैंने आपको क्या बोला है, देखो चाहे आपका नेगेटिव नंबर न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, फ्रैक्शन इज नेगेटिव, क्लियर है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, बोलो, -3/4 एंड दिस विल बी -5/6। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज टेक आउट देयर एलसीएम्स। किसके एलसीएम्स निकालेंगे आप, तो 4 और 6 के एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 और ये हो गया 3, 3 1s are 3 और ये 1, कितना हो गया बोलो एलसीएम, 12, ठीक है। सो -3/4 और ये आ रहा है आपका 12, तो 4 into 3 और ये हो गया 3, तो ये हो गया -9/12। -5/6 ये है आपका 12, 6 into 2 ये हो गया 2, तो -10/12। इन दोनों फ्रैक्शंस को इधर लिखिए, -9/12 एंड -10/12। कौन सा ग्रेटर होगा, -9 वाला ग्रेटर होगा, क्योंकि जब आप माइनस कर रहे हो तो द लोअर वैल्यू नंबर विल हैव हायर वैल्यू, ठीक है। तो मतलब 9 विल बी -9 इज ग्रेटर देन -10, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी को अपन क्या लिखेंगे, देखो -9/12 किससे आया है, -3/4 से, और -10/12 किससे आया है, -5/6 से। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। नेवर फिनिश ऑफ योर आंसर इन दिस, अदरवाइज इट विल बी मार्क रॉन्ग। ये आपको दिया नहीं था, आपने निकाला है। आपको जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है उसी फॉर्मेट में आंसर लिखना है, ठीक है। आर वी क्लियर, एनी क्वेश्चंस, नो, चलिए। तो मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन आपने किया भाई साहब। यहाँ पे अदर नंबर इज टेक द एलसीएम। यहाँ पे व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 6, सो ऑब्वियसली वी हैव सीन इट इज 12, ठीक है। सो एलसीएम एंड 4 and 6, तो ये हो गया -3 -9, ये हो गया -10। इन दोनों में से कौन बड़ा, -9 इज ग्रेटर देन -10, सो 3/-4 इज ग्रेटर देन -5/6, ठीक है। इस माइनस से ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, अरे ये तो डिनोमिनेटर के पास है, ये तो न्यूमरेटर के पास है, ये सब मत सोचिए। किसी एक के पास भी अगर माइनस रहेगा तो फ्रैक्शन नेगेटिव होगा, ठीक है। ईदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, एनी व्हेन इफ इट इज हैविंग अ नेगेटिव नंबर, द फ्रैक्शन इटसेल्फ विल बी नेगेटिव। इट्स सिंपल, ठीक है। लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल, ओके।
अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए इसको जरा करने की कोशिश कीजिए, ट्राई एंड डू इट, कम ऑन, क्विक क्विक एवरीवन। 2 मिनट में खत्म करना है, ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, टाइमर लगा दें, कितने का टाइमर लगाएं? चलिए देखते हैं, 1 मिनट का टाइमर लगाया है। और 20 सेकंड बाकी है, जल्दी से करनी है। ओके चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे बताइए ना, बताइए। तो आपके फ्रैक्शंस क्या क्या हो गया, -3/5, ये हो गया -7/10, और ये हो गया -5/8, ठीक है। ओके 5, 10 और 8 इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया 2, 5 ज़ा 10, ये 5, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 5 5, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2, 5 5, ठीक है। फिर 5 1 1 1, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो एलसीएम कितना हो गया बोलो 40, ठीक है। 5 को 40 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा पार्टी, 8 से। ऊपर क्या है बोलो, -3 × 8, ठीक है। यहाँ पे 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 बनाने के लिए, 4 से। सो -7 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ठीक है। 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 बनाने के लिए, 5 से, तो -5 × 4। आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना आ गया बोलो, -24/40। यहाँ पे कितना आ गया बोलो, बोलो। हाँ सॉरी, ये 5, सॉरी, ठीक है, ये 5 होगा, ओके। -24/40, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 28/40। यहाँ पे कितना होगा, -25/40। सारे के सारे नंबर जो आपके नेगेटिव हैं, सो स्मॉलेस्ट विल बी द लार्जेस्ट। समझ में आ रहा है, स्मॉलेस्ट यहाँ पे कौन है, 24, तो ये अब सबसे बड़ा हो जाएगा। तो -24/40 विल बी ग्रेटर देन -25/40, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन -28/40। अभी -24/40 किससे आ रहा है बोलो, -3/5 से। सो -3/5 इज ग्रेटर देन -25/40 किससे आ रहा है बोलो, -5/8 से, -5/8 से। एंड -28/40 किससे आ रहा है बोलो, -7/10। सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। तो फर्स्ट वी राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो हमेशा डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखा करो, ये जो माइनस है ना इसको न्यूमरेटर पे लेकर जाओ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे भाई साहब, यहाँ पे दिस विल बी 7 - 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है, यू कैन ईजिली मतलब माइनस को इधर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना करने की भी जरूरत नहीं है। तो आपके डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, और आपके न्यूमरेटर्स क्या हो गए भाई साहब, नेगेटिव, ठीक है, ओके। सो नाउ टू अरेंज द नंबर, व्हाट डू यू डू पीपल, फर्स्ट वी मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। सो हाउ डू वी मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल, बाय टेकिंग देयर एलसीएम। हमको भाई साहब एलसीएम लेना है इसका, ठीक है। सो वी विल टेक देयर एलसीएम, सो वी विल अरेंज देम। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 8? सो 5, 10 और 8 का एलसीएम निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो आपको कितना आ गया बोलो, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 40। तो -3/5 है, -3/5 × 8 ये हो गया -24/40। -7/10 है, ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, -28/40। -5/8 है, ये कितना हो जाएगा, -25/40। आर वी क्लियर? नाउ लेट अस कंपेयर द थ्री ऑफ दीज डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे कंपैरिजन देखो, तीनों भी आपके नेगेटिव है, तो तीनों में नेगेटिव मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो लार्जेस्ट होगा, ठीक है, ओके। सो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब आपका -24/, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका
हाँ ये सबसे छोटा होगा, आई एम सो सॉरी, ये सबसे छोटा होगा ना, जिसका सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो सबसे छोटा होगा, यस ठीक है। सो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस एंड दिस विल बी ग्रेटर देन दिस, या मैंने देखो ऐसे लिखा था ना, -24/40 इज ग्रेटर देन माइनस, मेरा भी सही है लिखना, ठीक है, सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे लिखो चाहे तो ऐसे लिखो, बोथ आर राइट, ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका, सो आप इसको क्या लिख सकते हैं, हेंस अभी इसके जगह पे सब लिखेंगे भाई साहब, -7/10 -5/8 और -3/5। अभी आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में आंसर लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो -7/10 नहीं है, 7/-10 है, लिख दो भाई साहब, क्या जाता है 7/-10, ये -7/10 और 7/-10 आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। कैसा, ऐसा देखो लिखा तो चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुमको सवाल में इससे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, सवाल में तुमको ऐसा दिया हुआ है, तो तुमको सवाल के साथ ऐसे लिखना पड़ेगा, सवाल के फॉर्मेट में ऐसे लिखना। तुम सवाल को सॉल्व करने के लिए एडजस्टमेंट तुमने किया, माइनस नीचे का ऊपर ट्रांसफर कर दिया, विच इज फाइन, बट सवाल में जो क्वेश्चन दिया हुआ उस फॉर्मेट में आंसर चाहिए, ठीक है। 7/-10, ठीक है, -5/8 -3/5, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो जब तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हारा यूनिफॉर्म है, राइट भाई, यूनिफॉर्म पहनोगे, अपना शर्ट को अंदर डालोगे, पैंट पहनोगे, शर्ट को अगर बाहर करके जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, राइट। तुम बोलोगे मैं यूनिफॉर्म तो पहना हूँ, है ना, वही मेरा जो शर्ट पैंट है वो पहना तो हूँ ना मैं, ठीक है। तुमने भाई साहब स्कूल गए और बेल्ट निकाल दिया तुमने, या टाई को ढीला कर दिया, ये सब करोगे तो प्रॉब्लम होगा, राइट। देयर इज अ सर्टेन यूनिफॉर्म कोड दैट यू हैव टू फिनिश ऑफ विद, सो दिस आंसर ऑल्सो शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन गिवन, ठीक है। अदरवाइज दिस इज नॉट रॉन्ग, बट फिनिश इट ऑफ इन दिस सो दैट आपके मार्क्स कटने का कोई भी स्कोप ना रहे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर? आसान है भाई साहब, चलिए करिए इसको, इजी सवाल है, एकदम इजी सवाल। तो पहला काम अपन क्या करेंगे, पहला काम क्या करेंगे, हु कैन टेल मी? नहीं, एलसीएम के पहले भी एक स्टेप आपको लेना है, ये जो माइनस है उसको ऊपर ढकेल दो, ठीक है। तो -4/5 कर दो और यहाँ पे -7/10 कर दो, ठीक है। अब क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। चलिए 5 और 10 का एलसीएम देख के ही बता सकते हो क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो 5 को 10 बनाने के लिए, तो यहाँ पे -4/5 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और इसको 2 से, ठीक है। -7/10 है, इसको वैसे ही रहने दोगे क्योंकि 10 तो ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 10 -8 और ये हो गया -7/10। तो -7/10 ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, -8/10 से, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे -7/10, अभी इस फॉर्मेट में लाना है। -8/10 किससे आ रहा है, -4/5 से, और -4/5 एक्चुअली नहीं दिया हुआ था आपको, आपको दिया क्या था, 4/-5। जिस फॉर्मेट में आपको सवाल दिया है उसी फॉर्मेट में आप एंड करेंगे सवाल को, ठीक है। First we take the equal denominator. So let's take the LCM. What is the LCM of 5 and 10? Obviously 10. So how do we do this people? -8/10 और यहाँ पे कितना हो गया, -7/10. So out of these two numbers, -7 is greater. So -7/10 is greater than 4/-5. Are we understanding this people? क्या ये clear है? बहुत बढ़िया. Any doubts? Any questions? नहीं, आगे बढ़ा जाए. चलिए. Arrange the following numbers in descending order. I hope everybody is clear of what we mean by descending order. बड़े से छोटा, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए इसको जरा, टाइमर लगा दें, नहीं मैथ्स के सवाल जब भी किया करो टाइमर लगा के किया करो, आप अपने आप ही आपका बढ़ जाएगा। चलिए 2 मिनट का टाइमर देते हैं अपन।
हो गया, डन। डन बच्चा बड़ी, अरे तो वो टाइम ओवर हो गया, ओ डस। ओके चलिए क्या करेंगे भाई साहब, फटाफट से पहले तो भाई साहब सबको माइनस कर लो, -5/6, ये हो गया -7/12, ये हो गया -13/18, ये हो गया -23/24, ठीक है। 6, 12, अब क्या करोगे भाई साहब, सबको सबके माइनस को तुमने किस में ला लिया, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को सबको क्या कर दिया, पॉजिटिव, ठीक है। नाउ व्हाट विल वी डू, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 6, 12, 18, 24। क्या तुम देखकर ही बता सकते हो इसका एलसीएम कितना होगा, क्यों 72 होगा, गलत, एलसीएम कितना होगा, अरे क्यों बढ़ा क्यों रहे हो तुम लोग, अरे देखो ना ये क्या है, 6 का टेबल ही तो है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 24 तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। एक ही नंबर का टेबल है ना भाई, क्या ये मामला समझ में आ रहा है। सी जब भी कोई चीज आपको मिले हर समय फॉर्मेट में ही नहीं करना है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है अपना, यार यहाँ पे हम फिर से क्यों, तुमको करना है तो कर लो, 24 ही आंसर आएगा, लेकिन तुम थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, व्हाट इज दिस, इट्स द टेबल ऑफ 6 ओनली, 9, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 24 एलसीएम हो जाएगा। अभी अगर आपको करना है लॉन्ग फॉर्मेट में कीजिए, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, ठीक है। जिस सवाल को आप लगभग 1 मिनट में निपटा सकते हैं वो खिंच जाएगा 2-2.5 मिनट तक, ठीक है। और अगर गलती हो गया तो और मुसीबत, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, ओके, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 उतरा, 9 एंड अगेन 2 6 जा 12, ठीक है, 2 ये 3 3 9 और ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 1 1 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मैंने कुछ गड़बड़ किया है भाई साहब, नहीं 48 नहीं आएगा यार, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ किया है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 9, 2 12 जा 24, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मैंने कुछ गड़बड़ किया है यार, देयर इज सम मिस्टेक दैट आई हैव डन, 3 3 जा 9, नहीं सब जाएगा ना 12 से, देखो 24 से सभी जाएगा, मैंने कुछ गलती की है यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर मैं 24 को एलसीएम दूं तो आपके फ्रैक्शंस क्या क्या हो गए, -5/6, -7/12, -13/18। देखो एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। क्या 24 6 से जा रहा है, क्या 24 12 से भी जाएगा, हाँ 18 नहीं जाएगा, करेक्ट, 72 होगा, 70 नहीं 48 होगा, करेक्ट 18 नहीं जाएगा, यस। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा 6 12 18 24, हाँ 72 नहीं 48 हो जाएगा। देखते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, 2 3 जा 6, ये 3 9, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 9 और ये 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 1 जा 3, 3 और ये 1, 3 1 1 1 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 जा रहा है, ठीक है। चलिए 6 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे 72 आए, 12 से, तो -5 को अभी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 72 आए 6 से, तो -7 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 18 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 72 आए 4 से, तो -13 को भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -23 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करो। देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे 6 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कैसे समझेंगे इस चीज को, यहाँ पे 3 उठाओ और एक 2 उठाओ, कितना आया 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 6 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 12 से, ठीक है, क्लियर है, ओके। 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12,
12 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 6 से, ठीक है। 12 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? फिर से डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, 18 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो उठा लो भाई साहब, 3 2 3 3 9, 9 2 18, तो इतना हो गया, बचा कितना? 4, 18 4 72, ठीक है। 24 3 24 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24, इतना पूरा हो गया 24। 24 को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3 से, तो 23 को 3 से। आर बी क्लियर? ठीक है, चलिए यहां पे कितना आ गया बोलो? 12 5 60, 60 बाई 72, यहां पे कितना आ गया बोलो? -42 बाई 72, ठीक है। यहां पे -12 52 बाई 72, 69 बाई 72, ठीक है। क्लियर है? इसको किस में लगाना है भाई साहब? आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? जो सबसे लीस्ट वाला होगा, -42 बाई 72, दिस विल बी ग्रेटर देन -52 बाई 72, this will be greater than -60 by 72, and this will be greater than -69 by 72। तो अभी सबको असली रूप में लाना है। -42 by 72 कहां से आ रहा है? इससे आ रहा है ना, -7 by 12, so this is greater than 52 by 72 किससे आ रहा है भाई साहब? -13 by 18 से, so this will be greater than -13 by 18, ठीक है। 60 by 72 कहां से आ रहा है? -5 by 6 से, -5 by 6 से। और फाइनली आपका 69 by 72 किससे आ रहा है? 23 by -24 से। पहले हमने यहाँ पे किया था, तो 23 by -24 से। आर वी गेटिंग दिस पीपल? कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, एनीथिंग विच हैज नॉट बीन अंडरस्टूड? ओके, तो वी हैव दिस, ठीक है। आपका कितना हो गया भाई साहब? 23 by 24। फर्स्ट वी मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए अपन क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, ठीक है। वी विल टेक दी एलसीएम, सो लेट्स टेक दी एलसीएम। यहाँ पे आपका है, ये क्या हो गया? एलसीएम क्यों ऐसा आ गया? 144 कहाँ से आएगा? ये रॉन्ग है सवाल। दिस इज बेसिकली रॉन्ग, ठीक है, इसमें रॉन्ग आया है आपका। यहाँ पे क्या खत्म हुआ? मॉड्यूल 1, इसमें आपका कौन सा खत्म हुआ अभी? मॉड्यूल 1